A very good morning to all of you. This is Abhidashana Hata, your political science teacher. So, children, today we all are going to continue this chapter number 8 of your book. The name of your chapter is Local Government. In our last class, we discussed about the introductory part of this chapter, and after that, we discussed why local governments, why it is important to have local governments especially in a democratic country. What is the role of the local government? Okay, so now our today's topic is growth of local government in India. We will look after the growth of local governments in India, how local trend of local government started in India, so how it has grown in India and what our constitution says about it. Okay, so it is believed that the self-governing village communities existed in India from the earliest times in the form of sabhas. Sabhas means village assemblies in the form of sabhas, and after some time, what happened? After some time, these village bodies, these sabhas, these village assemblies took the shape of panchayats. Okay, so panchayats, as you all know, panchayat means an assembly of 5 persons. So जो भी सभास होती थी, these panchayats and these sabhas, what they did, they resolved issues at the village level. वो village level पे जो आपकी issues होते थे उनको resolve किया करते थे. So it was like, it is believed that it is existed from the earlier times in the form of village assemblies, and after a certain point of time these sabhas converted into panchayats. So the member of the an assembly of 5 members. Okay, and what their main role was to, or you can say is to resolve issues at the village level. जो भी village है, village level पे वो क्या करते हैं, जितने भी issues हैं उनको resolve करते हैं. So their role and function kept on changing at different points of time. ठीक है, जैसे जैसे टाइम जाता रहा, जैसे टाइम चलता रहा, ठीक है, kept on going, ठीक है, जैसे टाइम बढ़ता रहा, अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या है, उनके रोल्स और फंक्शंस भी क्या होने लग गए, चेंज होते गए, राइट. सो नाउ this is the picture you are looking at is the picture of Lord Ripon. He is known as the father of local bodies. So he is considered as the father of local bodies. Who is considered as the father of local bodies? Lord Ripon. So he was the viceroy of India at that time in 1882. Okay, at that time he was the viceroy of India, and he took the initiative in creating elected local government bodies for the first time. They were called the local boards. So in 1882, what he did, he took an initiative in creating the local boards, in creating the local government bodies, and it is called as local boards. So however, due to the slow progress of local bodies, the Indian National Congress urged government to take necessary steps to make all local bodies more effective. ठीक है, ये जो आपका प्रोग्रेस था, जो लॉर्ड रिपॉन ने लोकल बोर्ड्स बनाए थे, इनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रही थी. ठीक है, बहुत ही स्लो रेट से इनकी प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत ना के बराबर प्रोग्रेस हो रही थी. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, they urged government to take necessary steps to make all local bodies more effective. At that time Indian National Congress थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, या फिर इंडिया की एक बोल सकते हो कि जो मेंबर कम्युनिटी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी. तो उन्होंने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, एट दैट टाइम कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे अर्ज्ड देम कि जितने भी लोकल बॉडीज है उनको इफेक्टिव बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो हैं लेने चाहिए. ठीक है, सो आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 passed. ठीक है, and according to this act, village panchayats were established
in a number of provinces. Now you all are very much aware what is provinces at that time. At the time of British Raj, uh, several several territories were divided into provinces. Several territories were divided and they were called as provinces, like Bengal provinces, Madras provinces, Bengal provinces, Hyderabad provinces, right? So village panchayats were established after the Government of India Act 1919. Village panchayats were established in a number of provinces, and this trend continued after the Government of India Act of 1935. एक तो Government of India Act 1919 आया, जिसमें बहुत सारे विलेज पंचायत को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जो ट्रेंड है, ठीक है, 1935 तक चलता रहा, ठीक है, कि विलेज पंचायत में विलेज लेवल पे क्या किया जा रहा था, विलेज लेवल पे विलेज पंचायत को क्या किया जा रहा था, एस्टैब्लिश किया जा रहा था। So now Mahatma Gandhi had strongly pleaded for decentralization and political power. Okay, so as you all know, like our various freedom struggle was going on, and at that time India, during India's freedom movement, what Mahatma Gandhi like pleaded for, urged for, he pleaded for decentralization. Now what is decentralization? It referred to as a form of an organization structure where there is the delegation of authority by the top management to the lower level. मतलब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू लोकल ऑफिसर। जो टॉप लेवल गवर्नमेंट है, जो हायर लेवल गवर्नमेंट है, what they supposed to do, they supposed to transfer their powers to the local government. आपने क्लास 10th में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा है क्या है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट या टॉप लेवल गवर्नमेंट अपनी पावर को, ठीक है, डिवाइड कर लेती है किसके साथ, लोकल लेवल गवर्नमेंट के साथ, that term is known as decentralization. So Mahatma Gandhi at that time, during this freedom struggle, during this freedom movement, he urged for the decentralization and political power. He believed that strengthening village panchayats was a means of effective decentralization. If we strengthen our village panchayats, because they are at the local level, they are at the root level. Okay, if we strengthening them, it means there is a effective decentralization. अगर हम village panchayats को strengthening देंगे, ठीक है, strength करेंगे, strong बनाएंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो decentralization है उतना ही क्या है, उतना ही effective है। So all development initiatives must have local involvement in order to be successful. All development initiatives, either it is the development of constructing roads, hospitals, schools, building, employment generation, ठीक है, economically soundable हो, economically suitable हो, socially, politically, any kind of development initiative जो भी लेते हैं वो हमें लोकल इन्वॉल्वमेंट के साथ में लेनी है, लोकल लेवल से, रूट लेवल से स्टार्ट करनी है अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो। So panchayats therefore were looked upon as instruments of decentralization and a participatory democracy. तो पंचायत को कैसे देखा जाता था? They looked as instruments, ठीक है, instruments means यहाँ पे बोल दीजिए कि एक अगर हमें कोई म्यूजिक, ठीक है, हमें ब्यूटीफुल साउंड क्रिएट करना है, we need the instrument, right? Any kind of instrument. Just like that, if we really want to strengthen our economy, if we really want to strengthen our इकोनॉमी, स्ट्रेंथन आवर कंट्री, और इस डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हमें इम्प्रूव करना है, डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करना है, डेमोक्रेसी को रियल मीनिंग में सक्सेसफुल बनाना है, तो वी लुक्ड अपॉन पंचायत एज इंस्ट्रूमेंट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाना चाहिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए।
So our national movement was concerned about the enormous concentration of powers in the hands of the Governor General sitting at Delhi. So our national movement, ठीक है, जो हमारे नेशनल मूवमेंट था, अब उससे क्या हुआ, इट वाज अ कंसर्न, ठीक है, इट वाज अ कंसर्न फॉर द गवर्नर जनरल, जो हेड थे गवर्नर जनरल्स जो दिल्ली में बैठे हुए थे, ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड एट दैट टाइम इट वाज द दिल्ली इज द हेड स्टेट, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश राज। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, ये काफी इट वाज कंसर्न्ड अबाउट द इनॉर्मियस कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, कि गवर्नर जनरल्स की जो पावर है, ठीक है, गवर्नर जनरल के हाथ में जो है हमारी सारी पावर्स है, और ये एक कंसर्न होना चाहिए उन लोगों के लिए, हमें उनके हाथ में पावर नहीं देनी है, वी हैव टू टेक लाइक वी हैव टू decentralize our power. So our leaders independence meant an assurance, for our leaders independence meant an assurance that there will be a decentralization of decision making, executive and administrative powers. Okay, so as you all know, देखो जो national movements चल रहे थे, freedom movements चल रहे थे, तो जितने भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो गवर्नर जनरल दिल्ली से हेड कर रहा है, सारी पावर्स उनके पास है, जितने भी डिसीजंस हैं वो लेते हैं। तो उस टाइम में उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि इंडिपेंडेंस, हमें रियल मीनिंग में इंडिपेंडेंस तब मिलेगी जब ये हमें एश्योर हो जाए कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कि लोकल लेवल के पास पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या और इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है, लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। So there is a box given in your book. So look, this is the picture of Mahatma Gandhi. What he said, what he pleaded, the independence of India should mean the independence of the whole of India. Independence must begin at the bottom. He always focused on the बॉटम लेवल, रूट लेवल, ठीक है, हमेशा रूट लेवल पे महात्मा गांधी हमेशा रूट लेवल पे और रूरल पॉपुलेशन के बारे में, एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में उन्होंने काफी सोचा है, और उनकी फिलॉसफीज भी जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी ले लीजिए, इकोनॉमिकल फिलॉसफीज ले लीजिए, वो भी रूट लेवल से ही स्टार्ट होती है कि इफ वी रियली वांटेड टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर विलेजेस। So he said इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट फुली तभी हो पाएगा जब हमारा जो रूट लेवल है, विलेज लेवल है, वो स्ट्रेंथन होगा, वहां पे इंडिपेंडेंस आएगी। एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक, हर एक विलेज को रिपब्लिक, हर एक विलेज जो है रिपब्लिक होगा, एंड इट फॉलोज देयरफॉर दैट एवरी विलेज हैज टू बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट अफेयर्स। एवरी विलेज सेल्फ सस्टेन्ड हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जितने भी उनके अफेयर्स हैं, जो भी लोकल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, जो तो उन्हें वो क्या करें, केपेबली मैनेज कर सके। ओके, सो इन द स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ इन्यूमरेबल विलेजेस देयर विल बी एवर वाइडनिंग, एवर ascending circles. So if we really wanted to strengthen our economy, really wanted to strengthen our country, and if we really wanted independent, like real independence, we have to strengthen our village. Because India is like composed of innumerable villages. So many villages are there. Okay, so many villages are there, and हमें इस structure को क्या करना होगा, strong बनाना पड़ेगा, ठीक है। Life will be a pyramid with the apex sustained the bottom, ठीक है। Life जो है, ठीक है, life will be a pyramid with the apex. Apex क्या होता है? Apex means important. If we give importance to the bottom level, it will become our like pyramid, ठीक है, कि जो हमारी पावर होनी चाहिए, ठीक है, वो ऐसे होनी चाहिए, just like a pyramid shape, कि हम ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, रूट लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा क्या हो रही है, रूट लेवल पे हो रही है, फिर बॉटम लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे। तो डिसीजन हमारा और जो पावर टेकिंग डिसीजंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, पिरामिड के शेप में होनी चाहिए, तभी जो है
लाइफ विल बी पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम, ठीक है। अगर हम बॉटम पे फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ जो है एज अ पिरामिड रहेगी। बहुत हमारी जो कंट्री है काफी इकोनॉमिकली बोल दीजिए, डेवलप सोशली बोल दीजिए, काफी पॉलिटिकली बोल दीजिए, काफी सस्टेन्ड होगी एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द रियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द वर्ड्स बाय महात्मा गांधी। सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन्ड टू द स्टेट्स, ठीक है। जो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था, ठीक है, जो 3 इयर्स का टाइम स्पेन था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिपेयर हो रहा था, एट दैट टाइम जो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था इट वाज असाइन्ड टू द स्टेट्स। It was also mentioned in the directive principles of state policy. We have already read about directive principles of the state policies. These are the guidelines given by our constitutional makers, ठीक है। तो जो constituent assembly है, constitution makers है, they also mentioned about the local governments कि we should give power to the local governments, but they gave this as a DPSP, they gave this as a guidelines, ठीक है। So this provision of the constitution was non-justiciable. I already told you what is non-justiciable. नॉन जस्टिशिएबल मतलब कि ठीक है उन्होंने गाइडलाइंस दी है बट उसको आपको फॉलो करना है नहीं करना है, वो अभी नहीं फॉलो करना है, आप आगे जाके क्या कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। So not capable of being decided by legal principles or by a court of justice. This is not justiciable, okay. And primarily advisory in its nature. It was just like a advisory to the Indian citizens, Indian leaders, future Indian leaders. It was just a directive principles of state policies, just a advisory body, advisory book, okay. It is not non-justiciable. So it is felt that the subject of local governments, including panchayats, did not receive adequate importance in the constitution. Now question arises, why? जो ये लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, चाहे वो पंचायत ही क्यों ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज्यादा उन्होंने क्या है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। Why? क्यों नहीं दिया? Some of the reasons are there. Firstly, the turmoil due to the partition resulted in a strong unitary inclination in the constitution. Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to unity and integration of the nation. So, very first reason of this was कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो टर्मोइल था, जो आपका आप बोल दीजिए कंफ्यूजन था, जो ट्रॉमा था पार्टीशन की वजह से लोगों के अंदर, ठीक है, जो लोगों के हार्ट, लोग बहुत ज्यादा, लोगों का डिवीजन हो गया था, लोगों के हार्ट्स का डिवीजन हो गया था, तो लोग बहुत ज्यादा क्या थे उस टाइम पे, ट्रॉमा में थे, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई थी, जो ये कंडीशन अराइज हुई थी, सोशल जो लोग जो इमोशनली बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गए थे, लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। सो इससे क्या था, ये गुस्सा जो है, एक भी गलत स्टेप जो है वो क्या था, इट रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन। कि यूनिटरी इंक्लिनेशन मींस यू कैन से tilted, they more to tilted towards, या फिर झुकाव बोलते हैं ना, या फिर एक ऐसी फीलिंग जिसमें in which somebody want to behave in a particular way, कि unitary way में, unitary means क्या होता है, सिंगल, कि पार्टीशन के वजह से क्या हुआ है, हमारा जो लोगों का झुकाव है, लोग जो है काफी मतलब सिंगल सोच वाले, सेल्फिश सोच वाले बन ना जाए, ठीक है। वो उन्होंने एक्चुअली नेहरू जी ने क्या है, एक्सट्रीम लोकलिज्म भी देख लिया था, कि लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ नेशन, ये सब आप नेक्स्ट अपनी क्लास 12th में पढ़ोगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को पड़े थे नेशन को इंटीग्रेट करवाने में,
किन किन पर्सनालिटीज का बहुत ज्यादा रोल था हमारे नेशन को इंटीग्रेट करवाने में। तो नेहरू जी ने, जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने काफी एक्सट्रीम लोकलिज्म को देखा था। उन्होंने देखा था, उन्होंने बोला था कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट को अभी से हमने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी या फिर पावर दे दी, तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि इंडिया जो है डिवाइड हो जाए, राइट। सो दैट्स व्हाई ये तो एक पहला रीजन था। एक तो ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, और जो टर्माइल, जो लॉस हुआ था पार्टीशन के वजह से, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, एवरीथिंग, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे। तो अगर हम लोकलिज्म या फिर पंचायत को ज्यादा पावर देते हैं, तो इससे क्या है, हमारी जो यूनिटी है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है। ओके, सेकेंड रीजन क्या था? सेकेंडली, देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, which felt that the faction and caste ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at rural level. So now our very own, the chairman of the Constituent Assembly, Dr. Bhimrao Ambedkar, उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में फैक्शनलिज्म आ जाएगा। फैक्शनलिज्म क्या आ जाएगा? फैक्शन का मतलब क्या होता है? Small groups of people within a large one whose members have some different aims or you can say beliefs। ठीक है, एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है, उस बड़े से ग्रुप में क्या है, जब स्मॉल ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, उनके अलग अलग क्या है, सोच है, उनकी अलग अलग सोच है, उनके अलग अलग बिलीफ्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जो, अगर हमने लोकलिज्म कर दिया, ठीक है, या फिर हमने सपोर्ट किया कि विलेज पंचायत को हमें अभी से पावर देनी चाहिए, तो इससे फैक्शनलिज्म अराइज हो सकता है। कास्ट रिडन नेचर, हमारी उस टाइम पे जो सोसाइटी थी काफी कास्ट रिडन नेचर की भी थी, ठीक है, काफी अनटचेबिलिटी उस टाइम पे काफी फॉलो की जाती थी। तो ये उस टाइम का मेन इशू था कि वी हैव टू ब्रिंग इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, ठीक है। तो कास्ट रिडन सोसाइटी भी थी। तो फैक्शनलिज्म क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। और जो हमारा पर्पस है, जो मेन पर्पस है लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट का बनाने का, ठीक है, वो जो पर्पस है हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा इफ अगर हमने अभी से लोकल गवर्नमेंट्स को क्या कर दिया, पावरफुल बना दिया था। तो दीज वर द टू मेन रीजंस like why panchayat did not receive adequate importance in the constitution. Agar question arise hota hai, you have to write these two points. Okay, so many members of the Constituent Assembly wanted village panchayats to be the basis of democracy in India, but they were concerned about factionalism and other ills present in the village, in the villages। factionalism और villages में उस टाइम पे काफी, आज के टाइम पे भी आप देख लोगे काफी हमें कास्टिज्म देखने को मिल जाएगा। अब उतना नहीं है बट फिर भी है, कास्टिज्म देखने को मिल जाएगा। फैक्शनलिज्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फैक्शनलिज्म की, कि हमारा जो ग्रुप है क्या है, डिवाइड ना हो जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, मोस्टली जो मेंबर्स थे, उनका यही सोचना था कि विलेज पंचायत जो है होनी चाहिए, बट अगर हमने अभी से इसको इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी पावरफुल बना दिया, मतलब ये 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है, तो हमारी सोसाइटी जो एक फैक्शनलिज्म का डर रहेगा, ठीक है, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज बन जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है विलेज पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट का जो ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो स्टेट के पास रहने लगी दिया और डिसेंट्रलाइजेशन को एज अ गाइडलाइन क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। सो नाउ देयर इज अ one more box given in your book and some statements or you can say some lines by Anant Sayanam Iyengar, ठीक है, अनंत सायानम अयंगर, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही थे। उन्होंने क्या, in the interest of democracy, the villages may be trained in the art of self government, even autonomy. We must be able to reform the villages and introduce
democratic principles of government there. So now what Anantha Sayanam Iyengar, what he said कि अगर in the interest of democracy के interest के लिए, if we really want a successful democracy, the villages जो हैं उनको self government में training देनी चाहिए, even self autonomy क्या होता है, to control his somebody who has the right to control his or own affairs, कि उनको अपने लोकल अफेयर्स को वो खुद देख सके, उनका प्रॉब्लम खुद वो क्या है उस प्रॉब्लम की खुद सोल्यूशन निकाल सके, they are able to find their own solutions for their problems or for their local affairs. तो हमें विलेजर्स को क्या करना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, एंड वी मस्ट बी एबल टू रिफॉर्म द विलेजेस एंड इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट देयर। हम विलेजेस को रिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब चेंज करना यहाँ पे मतलब बेटर बना सकते हैं हम अपने विलेजेस को, और यहाँ अगर हमने विलेजेस में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है गवर्नमेंट के, वहां पे अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। Okay, so this is about how like local government grows in India, ठीक है, कैसे ग्रो हुआ। 1882 में लॉर्ड रिपॉन ने लोकल बोर्ड्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया, लोकल बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उससे पहले भी सभास और पंचायत थी, बट लॉर्ड रिपॉन ने लोकल बोर्ड्स बनाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करने लग गए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक ये ट्रेंड चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमारे नेशनल लीडर्स ने क्या किया, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी ने और भी लीडर्स ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, ठीक है, काफी फोकस किया डिसेंट्रलाइजेशन पे। आफ्टर दैट लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था तो कैसे लोकल गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई थी, कुछ रीजंस थे उसके। क्या क्या रीजंस थे कि एक तो ये रीजन था कि पार्टीशन हो चुका था, तो लोगों के अंदर जो ट्रॉमा था पार्टीशन का अभी भी था। तो नेशनल इंटीग्रेशन का जो पॉइंट था, नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसमें उस टाइम पे थ्रेट हो सकती थी हमारी, थ्रेट टू यूनिटी विलेजेस। अगर लोकल गवर्नमेंट को अगर हमने पावर दे दी तो यूनिटी जो है उसमें काफी प्रॉब्लम राइज हो सकती है, यूनिटी के लिए थ्रेट बन जाएगा। एंड सेकेंड रीजन जो था, जो भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था कि फैक्शनलिज्म, सोसाइटी में फैक्शनलिज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्शनलिज्म क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ many ills practiced by the villagers at that time, जैसे कास्ट ridden सोसाइटी थी, ठीक है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से लोकल गवर्नमेंट को उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। So now this is all about today class. In our next class we are going to start our new topic of this chapter, and the name of your topic is local governments in independent India. We will continue this topic in our next class, where we will talk about the 73rd and 74th constitutional amendment acts. Okay, so this is all about today. I hope you enjoyed this class and go through the topic. Still, if you face any kind of problem, you can ask me in my next class. Thank you so much. Bye bye. Take care.